मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्व सूत्र में अपनी चर्चा कल दो आश्रमों पे चली थी। कौन कौन से दो आश्रम? सांप्रदायिक आश्रम और इरियापथ आश्रम, है ना। और सांप्रदायिक और इरियापथ आश्रम को हमने इस रूप में समझा था कि जो आश्रम संप्रदाय यानी कषाय सहित होता है वो आश्रम सांप्रदायिक आश्रम कहलाता है। और जो आश्रव ईर्या मतलब मात्र योगादि के माध्यम से होता है, कषाय के माध्यम से नहीं होता, वो आश्रव कौन सा आश्रव कहलाता है? ईर्यापथ आश्रव। ठीक है ना। ईर्यापथ आश्रव और सांप्रदायिक आश्रव के बारे में चर्चा की थी और थोड़ा ये समझने की कोशिश की थी। देखो यहाँ से कि ईर्यापथ आश्रव कहाँ तक होगा? बोले जो कि जीव कषाय रहित हैं, टेम्पररी भी कषाय रहित हों यानी उपशांत मूल वाले, तो भी उन्हें इरियापथ आश्रय होता है। परमानेंट कषाय रहित हों यानी 12वें गुण स्थान वाले, तो उन्हें होता ही होता है, लेकिन टेम्पररी रहित जीवों के लिए भी होता है। बराबर ना? अब अगली जो बात आ रही है तो अगली बात ये कहते हैं कि वो जो इरियापथ आश्रय है, वो इरियापथ आश्रय किस, ये इन दोनों के बीच में तुलना करके बताते हैं कि सांप्रदायिक आश्रय स्वामी, हेतु, कारण, तकार, गुणस्थान वगैरह वगैरह, और इरियापथ आश्रय, है ना। तो बताते हैं। हाँ देखो, हाँ तो फोन उपाड्यो नतो। स्वामी, सांप्रदायिक आश्रय के स्वामी यानी किसको होता है? बोले जो जो कषाय से जीव हैं उन सबको सांप्रदायिक आश्रय होता है। और इरियापथ किसको होता है? कषाय रहित। अब कषाय रहित में हमने समझने की कोशिश की, दोनों प्रकार के कषाय रहित जीव, यानी जिनको टेम्परेरी कषाय गई है ऐसे जीव और जिनको परमानेंट कषाय गई है ऐसे जीव। मुझे कोई बताएगा टेम्परेरी कषाय गई है ऐसे जीव कौन से हैं और परमानेंट कषाय चली गई है ऐसे जीव कौन से हैं? बताओ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, है? बोलो सर। 11मा गुणस्थान वाला उपशमिक हाँ सम्यक्त्व वाला हाँ हाँ, वेरी टेम्पररी गुड। કશાય રહિત છે ને અરિહંત ને हाँ 12વા ગુણસ્થાન પછી બધા પરમેનન્ટ કશાય રહિત. 12 થી, 12 પછી નહીં, 12 થી, એટલે 11મા ગુણસ્થાન એવો ગુણસ્થાન છે કે જે ગુણસ્થાનમાં કશાય નથી. નથી એ વાત સાચી, પણ એ થોડાક સમય માટે નથી, પછી થવાની છે અને પછી થશે તો પછી કશાય શું કહેવાય સાંપ્રદાયિક આશો થવા લાગશે. પણ 12મા ગુણસ્થાનથી જે મુનિરાજો છે એ 12મા ગુણસ્થાનથી મુનિરાજો અને 13મા ગુણસ્થાનથી અનંત પરમાત્મા, એ અનંત પરમાત્મા ને મુનિરાજો પરમાનેન્ટ કશાય રહિત થઈ ગયા છે. બરાબર? એ બે વચ્ચે આ ફંડામેન્ટલ ડિફરન્સ આવે. સમજ્યા કે નહીં સમજ્યા? જો હવે સ્વામી સમજી ગયા. હવે કહે છે હેતુ, એટલે કયા કારણથી સાંપ્રદાયિક આશ્રય હોય છે અને કયા કારણથી ઇરિયાપથ આશ્રય હોય છે. તો કહે છે જો મિથ્યા તો અવિરતિ, પ્રમાદ, કષાય અને યોગ. બરાબર? એ પાંચે વસ્તુ સાંપ્રદાયિક આશ્રયના કારણ છે. એ બધા ઉપર આપણે 8મા અધ્યાય ઉપર વિસ્તારથી ચર્ચા કરીશું.
પણ એટલું અહીંયા સમજવાનું કે આ એ બધી વસ્તુ શું છે, મિથ્યાત, અવિરતિ, પ્રમાદ, કષાય આદિ આ બધું સાંપ્રદાયિક આશ્રવનું કારણ છે. અને ઈર્યાપત આશ્રવનું કારણ કયો? બોલે માત્ર યોગ જ ઈર્યાપતનું આશ્રવનું કારણ. યોગ એટલે જે આપણે ચર્ચામાં લીધું કે મન વચન કાયનું કંપન, બરાબર ને, કે જે મન વચન કાયનું જે કંપન હોય છે એ યોગથી ઈર્યાપત આશ્રવ હોય છે. આમાં વાત ખબર પડી? એટલે અરહંત આદિને માત્ર યોગમાં કાય યોગ છે વિશેષ રૂપથી, બરાબર, અને એ કાય યોગના નિમિત્તથી કંપન થાય છે તો આશ્રવ કર્મ આવે છે. આવે છે પણ શું થાય છે એ અહીંયા બતાવે છે. શેનું કારણ છે? તો અહીંયા કહે છે સાંપ્રદાયિક આશ્રવ સંસારનું કારણ છે. એટલે સાંપ્રદાયિક આશ્રવથી કર્મ બને, અને કર્મ બને તો કર્મ બંધનથી જીવનો સંસારનો બંધન થાય. એટલે સાંપ્રદાયિક આશ્રવ સંસારનું કારણ છે. અને ઈર્યાપત આશ્રવ શું છે? બોલે ઈર્યાપત આશ્રવ સ્થિતિ રહિત આશ્રવનું કારણ છે. આ શબ્દ જરા થોડાક વિચારવા જેવું છે. સ્થિતિ રહિત આશ્રવ એનો મતલબ શું છે? એટલે આશ્રવમાં બે ભેદ પડ્યા. એક સ્થિતિ પડે અને સ્થિતિ નથી પડતી. એ વસ્તુ ખબર પડી ને? ખ્યાલમાં આવે છે કે નહીં? કઈ કઈ બે વસ્તુ કહું છું? એક તો સ્થિતિ પડવાની અને એક સ્થિતિ નથી પડવાની. અને આવી રીતે સમજી લેવાનું કે કોક તમારા સગા વાળાનો લગ્ન થતો હોય, બરાબર, અને જાન માં 200 બરાતીઓ છે, 200 જનૈયાઓ છે, અને 200 જનૈયાઓએ તમે મળવા જવાનું છે, અને તમે બધાને રેલવે સ્ટેશન પર મળવા જાઓ. 200 જનૈયાઓ છે, એ 200 જનૈયાઓ જોડે તમે 2 મિનિટમાં કે 20 મિનિટમાં મળી લો છો. તમને કેટલું ટેન્શન હોય છે? 200 લોકો જોડે તમે મળીને આવ્યા, કઈ ચિંતા થઈ, ગયા આમ હાલતા હાલતા અને આમ હાય હલો કરીને પાછા હાલતા હાલતા ઘર ભેગા. પણ હવે 200 માંથી 20 કે ના ના હાલો ચલો તમારે ઘરે આવું છે. હવે શું થયો? पहले 200 लोगों से आप मिलकर आए, अब 200 में से 20 कहने लगे कि घर पे आना है. 20 तो बहुत बड़ी बात हो गई, शर्म के मारे कोई कहेगा. 2 लोग भी कहते हैं कि चलो चलो घर पे आना है, तो कितनी टेंशन हो गई. अब मुझे बताओ, 200 में 200 से मिले तो टेंशन नहीं हुई, 200 से मिले तो टेंशन क्यों हुई? है બોલો, નીના ભાભીથી પૂછી લઉં છું શું વિચાર છે એમનું. એવી આમ જેન્ટ્સ ને મોટા ભાગે ચિંતા નથી થતી, લેડીઝ ને ચિંતા થાય છે. સ્વાભાવિક છે, જિમ્મેદારી તો એમની જ ઉપર આવે ને. જેન્ટ્સ ને તો કઈ નથી, બેઠીને કપડા કરવાના છે. બોલો, ચિંતા કેમ થઈ? મને સિમ્પલ ભાષામાં ઉત્તર આપો. હા, એટલે સમજ્યા ને, એકમાં સ્થિતિ નથી પડી, આઈને જતા રહ્યા, અને બીજામાં સ્થિતિ પડી ગઈ. ખબર પડી? રોકાયા એટલે સ્થિતિ પડી, અને રોકાયા વગર જતા રહે તો સ્થિતિ નથી પડી. તો જે ઈર્યાપત આશ્રવ છે ને એ રેલવે સ્ટેશનમાં લીધેલી જાનની મુલાકાત છે, બરાબર. અને સાંપ્રદાયિક આશ્રવ કેવો છે કે તમારા ઘરમાં આવેલા ગેસ્ટ, અને પછી કેવા વટવાળા ગેસ્ટ હોય ને, વેવાણ વેવાઈ જેવા ગેસ્ટ હોય, તો હું હોય પછી તો આખો દિવસ એમાં જ જાય. તો પછી સાંપ્રદાયિક આશ્રવ કેવો હોય કે આ ટાઈપનો હોય. खबर पड़ी कि नहीं पड़ी? एमा स्थिति पड़े, स्थिति जब पड़ती है तो स्थिति के पड़ते ही फिर उसके संबंधी सारे के सारे आपको व्यवस्था करनी पड़ती. तो अगर स्थिति नहीं पड़े, समझ रहे ना, अगर स्थिति नहीं पड़े तो कोई भी चीज समस्या का कारण नहीं है, और स्थिति पड़े तो सारा आश्रव, छोटे से छोटा आश्रव भी आपको कोई समस्या का कारण नहीं.
समझे कि नहीं समझे? तो यही अंतर, बुनियादी अंतर सांप्रदायिक आश्रव और इरियापत आश्रव में है कि ये जो सांप्रदायिक आश्रव है वो सांप्रदायिक आश्रव संसार का कारण और इरियापत आश्रव स्थिति रहित है। स्थिति रहित यानी कर्म आते तो हैं लेकिन रेलवे स्टेशन पे हाय बाय करके चले जाते हैं। बराबर समझ में आया कि नहीं है? कर्म क्या हो रहे हैं, आ तो रहे हैं लेकिन रेलवे स्टेशन पे ही मिलके चले जा रहे हैं, उनको कोई वो फर्क नहीं पड़ रहा कि क्या होगी क्या नहीं हो। समझ में आया कि नहीं है? तो वो कह रहा है इरियापथ आश्रव और ये कह रहा है सांप्रदायिक आश्रम। समझे कि नहीं समझे? दो बातें हो गई। चलो तीन कौन कौन से कि किसका कारण है? बोले संसार का कारण है और इरियापथ आश्रव स्थिति रहित आश्रव का कारण है। अब देखो आगे क्या कहते हैं, कितने प्रकार का बंध होता है। अब एक तो हुआ आश्रव, अब कहलाता है बंध। अब बंध में बताते हैं। तो बंध के चार प्रकार होते हैं। बराबर, बंध के चार प्रकार होते हैं। इनके बारे में 8वें अध्याय में विस्तार से चर्चा करेंगे। सरल भाषा में अपन ऐसे कहें कि भाई जैसे ही आपने किसी चीज को आपस में मिलाया एग्जाम्पल के तौर पे अपन ले कि आपने जैसे ही कोई मिठाई या पेंडा बनाया, बराबर ना, और पेंडा बनाते ही उसमें दूध मिलाया, मावा मिलाया, घी मिलाया, शक्कर मिलाई, केसर मिलाई और जो कुछ भी मिलाना वो आपने सब मिक्सचर कर दिया। मिलाया कि नहीं मिलाया? अब वो क्या बन गया? वो सारी चीजों का मिलकर एक पेंडा, एक पिंड बन गया। बना कि नहीं बना? और जैसे ही वो पिंड बनता है उस पिंड के अंदर में चार चीजें आ जाती कि नहीं आ जाती? सबसे पहले उसकी प्रकृति बन जाती है। प्रकृति बन जाती मतलब क्या कि वो क्या रहेगा, वो मिष्ठान रहेगा कि फरसाण रहेगा? ये पहला प्रश्न आता कि नहीं आता कि वो क्या रहेगा, वो मिष्ठान रहेगा कि फरसाण रहेगा? तो अगर मिष्ठान रहा तो ये कहलाई उसकी प्रकृति। बराबर। अब दूसरे नंबर पे जैसे ही उसकी प्रकृति डिसाइड होती है उसी समय उसकी स्थिति भी पड़ जाती है। और स्थिति पड़ने का क्या मतलब होता है कि ये पेंडा कब तक रहेगा। कहते हैं ना हर चीज के ऊपर लिखा रहता है बेस्ट बिफोर यूज ऑफ 12 मंथ कि ओपन करने के 4 दिन बाद तक खत्म कर लें। कि पेंडे की क्या स्थिति पड़ती है पता होगा ना आपको, है? पेंडे की क्या स्थिति पड़ती, कितने दिन में खराब हो जाते हैं? दूध का पेंडा हो तो 2 दिवस 3 दिवस। तो जो 2-3 दिवस है वो क्या है? बोले 2-3 दिवस उसकी स्थिति है। उसकी स्थिति मतलब कि वो 2-3 दिवस तक ही चलेगा फिर नहीं चलेगा, ये उसकी स्थिति पड़ गई। अब जैसे ही स्थिति हुई वैसे ही उसके अंदर में एक रस भी पड़ जाता है। मतलब फल कैसा देगा? अगर आपने उसमें क्या कहते हैं शक्कर ज्यादा डाली है तो स्वाभाविक है मिठास ज्यादा देगा, और शक्कर कम डाली है तो मिठास कम देगा। अब फल किस पर डिपेंड है? उसके कर्मों के कंटेंट पर। रस किस पर डिपेंड है? उसके कंटेंट पर। तो जैसे आपने कर्म बांधे वैसा वो रस उसको होगा। और फिर तीसरे चौथे नंबर पे क्या आता है कि आपने 50 ग्राम का पेंडा बनाया है कि 100 ग्राम का बनाया है कि 10 ग्राम का बनाया है कि 250 ग्राम का बनाया है, ये क्या हो गया उसका क्वांटिटी। तो जैसे जैसे ही आपने वो पेंडा बनाया वैसे ही उस पेंडे के अंदर 4 चीजें आ गई कि नहीं आ गई? बस इसी प्रकार जैसे वो पेंडे के बंध में 4 चीजें हो जाती हैं पेड़े के बंध में, वैसे ही कर्म के बंध में भी 4 चीजें हो जाती हैं। उसके अंदर प्रकृति मतलब नाम पड़ जाता है, उसकी स्थिति मतलब लिमिट आ जाती है टाइम की, कब फल देगा कितना फल देगा। उसके अंदर रस पड़ जाता है कैसा फल देगा, और उसके अंदर में अणु क्या कहते हैं प्रदेश यानी कि कितने कर्म परमाणु बंधे हैं ये। तो ये चारों चीजें उसके अंदर में आ जाती, उसी को यहां बता रहे हैं। देखो कितने प्रकार का बंध होता है? बोले 4 प्रकार का। तो प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग चारों हो गए। लेकिन जो इरियापथ आश्रम है अब यहाँ पे डिफरेंस हुआ। बोले सांप्रदायिक आश्रम में 4 के 4 भेद पड़े, लेकिन इरियापथ आश्रम कहता है कि हम टाइमलेस और टेस्टलेस दानगी बनाते हैं। बराबर। सांप्रदायिक आश्रम कहता है कि हम लिमिट वाली भी बनाते हैं
और हम क्या कहते हैं टेस्ट वाली भी बनाते हैं, लेकिन इरियापत आश्रव कहता है बोले नहीं, हमारे पास में कोई टाइम नहीं है, तुरंत के तुरंत अभी के अभी खत्म हो जाएगी और कोई टेस्ट नहीं है। तो ऐसे टाइमलेस और टेस्टलेस मतलब स्थिति बंद से रहित और क्या कहते हैं अनुभाग बंद प्रदेश से अनुभाग बंद से रहित मात्र नेचर और क्वांटिटी दोनों को लेकर जो काम करता है वो इरियापत आश्रव कहलाता है। अब देखना, कोई भी कर्म में अगर स्थिति ना पड़े, जैसे अपन फिर से कहें कोई भी कर्म फल ना देकर जाए, तो भले कितना कर्म हो हमें क्या फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे समझो अभी हमारे सत्ता में हजारों कर्म पड़े कि नहीं पड़े, दाखला तरीके किसी ने नरकायु बांध ली हो, मैं सोचता तो नहीं हूं ऐसा, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पर चलो एग्जाम्पल बदल देते, किसी ने देवायु बांध ली, बुरा क्यों बोले? गांधी जी ने बोला बुरा मत बोलो। है? अब देखना, किसी ने देवायु बांध ली, फर्ज करो कर्मों की स्थिति उसके अंदर पड़ी है कि नहीं पड़ी, सत्ता बराबर, वो उन सत्ता में उसका अनुभाग भी पड़ा है कि नहीं पड़ा, लेकिन वो अभी हमारे लिए कोई कल्पवृक्ष का फल देने वाला है क्या? अरे कल्पवृक्ष का फल नहीं दे दे, रत्नागिरी हाफूस रूपी फल ही दे दे, है बड़े महंगे हो गए। है समझ में आया कि नहीं है? यानी कहना ये चाह रहा है कि सत्ता में पड़ी हुई चीज जब तक उसकी स्थिति फल नहीं चालू होते तो हमारे लिए नहीवत होती है। ऐसे ही ये सब इरियापत आश्रव है, जिस इरियापत आश्रव में कोई भी स्थिति नहीं पड़ी, कोई भी रस नहीं पड़ा, तो वो हमारे लिए नहीवत है, कोई फल नहीं पड़ता उससे। तो वो बात यहां बताई जा रही है। तो इरियापत आश्रव में मात्र प्रकृति और प्रदेश होते हैं, स्थिति अनुभाग नहीं होते। अब देखो गुण स्थान बताते हैं कि सांप्रदायिक आश्रव पहले से 10वें गुण स्थान तक होता है और इरियापत आश्रव 11वें 12वें और 13वें गुण स्थान में होता है। 14वें गुण स्थान में क्या होता है? 14वें गुण स्थान में क्या होता है, कौन बताएगा? और सिद्धों को कौन सा आश्रव होता है? अघातीय कर्मों का भी नाश बोलो। हो जाता है। 14 नहीं, आश्रव कुछ तक ही नहीं होता 14वें गुण स्थान में, और सिद्धों को नहीं आश्रव होता नहीं सर होता। अयोग केवली हो जाता है। आश्रव नहीं, काय योग तो अयोग केवली को आश्रव क्यों नहीं होता? योग नहीं है ना, शरीर अयोग रूप के में ही रहता हूँ। बस सिंपल वस्तु, आश्रव का अनिवार्य कारण योग है। 13वें गुण स्थान तक योग था इसलिए आश्रव थे, और 13वें से ऊपर योग नहीं है इसलिए आश्रव भी नहीं है। आज समझ में आई यही बात है ना? देखो तो यहाँ पे 11वें 12वें 13वें गुण स्थान के लोग जो है मुनिराज वो इरियापत आश्रव के धनी। अब देखो एग्जाम्पल क्या कहते हैं सांप्रदायिक आश्रव में, जैसे कषाय रूपी तेल युक्त दीवार पर कर्म रूपी रज चिपक जाती है, बराबर, कोई तेल वाला आपका शरीर हो, दीवार हो, जरा सी धूल चिपक जाती है और कोरी दीवार पर रज आकर चली जाती है, वैसे ही है कि जिसके अंदर कर्मों की चिकनाहट है उसके लिए कर्म चिपक जाते हैं, और जिसके लिए कर्मों की चिकनाहट नहीं है उसके कर्म आकर फिर जाते हैं, वो ज्यादा देर तक रहते नहीं है, बराबर ना? देखो अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। ये 5वें नंबर का सूत्र है। क्या है? थोड़ा कठिन है, बोलना मेरे साथ में। इंद्रिय कषाय व्रत क्रिया, बोलो। इंद्रिय कषाय व्रत क्रियाः पंचचतुः पंचचतुः पंचविंशति पंचचतुः पंचविंशतिः संख्या पूर्वस्य भेदाः संख्या हाँ फिर से, इंद्रिय कषाय व्रत क्रिया इंद्रिय पंचचतुः पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदाः। देखो बहुत बढ़िया, एक साथ बोलोगे? एक साथ कौन बोलेगा? चलो
कौन बोलेगा? જતું प्रज्ञाबेन बोलશે? પણ જતું રહ્યું આમાં તો લિંક હા, જતી રહી લિંક અચ્છા તમને ઓકે ઓકે ઓકે, કઈ વાંધો નહીં. આમાં નથી દિનેશભાઈ? અત્યારે. हाँ जी बोलू। हाँ हाँ બોલો हाँ, बोलो बोलो बोलो. इंद्रिय कषाय व्रत क्रिया ઇન્દ્રિયા વિશે पंचचतुः पंचविंश विंशति संख्या पूर्वस्य भेदाः। हाँ હવે આવ્યું बराबर, सरस. हाँ बोलो હવે इंद्रिय प्रज्ञाबेन. હા ઇન્દ્રિય કષાય વ્રત ક્રિયા પંચચતુ પંચવિંશતિ સંખ્યા પૂર્વસ્ય ભેદઃ. બહુ સરસ. पूर्वस्य भेदा એટલે जो हमने पहले दो भेद किए थे, कौन से? सांप्रदायिक और ईर्यपत आश्रव, दो भेद किए थे ना. तो सांप्रदायिक आश्रव, कौन सा आश्रव? सांप्रदायिक आश्रव पहला है. और उस सांप्रदायिक आश्रव के भेद कितने हैं, कारण क्या है, तो बताते हैं. देखो, पूर्व से अर्थात सांप्रदायिक आश्रव कितने कितने प्रकार से होता है. देखो ध्यान से समझना ये बात है. इंद्रिय पंच, देखो जितने जितने हैं ना, उन सब के साथ में उनकी ऑर्डर में अंक जोड़ते जाना. पहले लिखा हुआ है इंद्रिय, लिखा है ना इंद्रिय, પાંચ इंद्रिय के साथ में लाना यहाँ पर पंच, बराबर. પાંચ देखो, हाँ. फिर उसके बाद में कषाय लिखी है, तो कषाय के सामने लिखना चतु, है ना, चार, है ना. फिर ये क्या हुए? व्रत हुए. व्रत, तो व्रत कितने हुए? पंच, तो पांच हो गए. फिर क्रिया, क्रिया हो गई पंचविंशति. क्रिया कितनी हो गई? पंचविंशति, यानी 25. संख्या, इन संख्या प्रमाण पूर्वस्य भेदा, यानी आश्रव के भेद हैं. यानी सरल भाषा में कहें तो पूर्वस्य यानी पहला जो सांप्रदायिक आश्रव है, उसके 5 इंद्रिय, 4 कषाय, 5 व्रत और 25 क्रिया, यानी कुल मिला के 39 भेद होते हैं. बराबर, 39 भेद होते हैं. चलो आगे देखते हैं, आगे इसका और खुलासा करेंगे. इसकी काफी चर्चा अपन ने की है और वर्णन भी है कि मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि जब हमें ये कषाय सहित आश्रव होता है, तो कषाय सहित आश्रव का कारण क्या होता है. तो कषाय सहित आश्रव के कारण में यहाँ ये बताया जा रहा है कि इंद्रिय, कषाय, अवृत के परिणाम और क्रिया, ये चीजें होती हैं तो जीव को कषाय सहित आश्रव होता है. देखो, इंद्रिय, अब इंद्रिय क्या कहलाती है? आत्मा के लिंग यानी चिन्ह विशेष को इंद्रिय कहते हैं. अब इंद्रिय, अब इसको मैं सरल भाषा में पूछूं तो क्या इंद्रियों के होने के कारण आश्रव होता है, कि इंद्रिय के विषय में प्रवृत्ति करने के भाव के कारण आश्रव होता है? बोलो, इंद्रियां कहती हैं क्या कि भाई बंधो? इंद्रियां, आंख कहती है क्या कि पिक्चर देखो, है? इंद्रियां कहती है कि आंख कहती है कि भाई मैं पिक्चर देखो. कान कहते हैं कि गीत सुनो. जिह्वा कहती है कि बहुत बढ़िया मीठा स्वादिष्ट भोजन दो. इंद्रिय तो न्यूट्रल है, लेकिन ये जीव इंद्रियों के माध्यम से इंद्रिय विषयों में प्रवर्तन करता है, तब जाकर वो इंद्रियां बंधन का कारण हो जाती हैं. और अगर कोई जीव इंद्रियों के विषयों में प्रवर्तन करने की बजाय इंद्रियों के विषयों में विरक्तता की चीजों में प्रवर्तन करे, तो बंधन का कारण नहीं होती. समझ में आया? कि बोले जिन आंखों से आप टीवी देख रहे हो, उल्टे पुल्टे चित्र देख रहे हो, टीवी गाने सुन रहे हो, क्या क्या करो, उन्हीं से आप भगवान की प्रतिमा देख सकते हो, शास्त्र पढ़ सकते हो, प्रवचन सुन सकते हो, कानों से संयमित भोजन कर सकते हो. बराबर, ऐसे करके 50 प्रकार की चीजों से इंद्रिय विषयों से विरक्त आप हो सकते हो. तो इंद्रिय आश्रव का कारण नहीं है, इंद्रिय के विषय आश्रव का कारण नहीं है, उन इंद्रिय के विषयों में मोहाधीन प्रवृत्ति वो आश्रव का कारण है. पॉइंट समझ में आया? ख्याल में है कि नहीं है? मैंने क्या बोला? इंद्रिय आश्रव का कारण नहीं है, इंद्रिय विषय भी आश्रव का कारण नहीं. विषय तो गृह. आप विचार करके देखो, एक माता बहन के शरीर को कोई 3rd क्लास आदमी किस रूप में देखता है?
और एक डॉक्टर किस रूप में देख रहा है और मुनिराज किस रूप में देख रहा है। तीनों की दृष्टि कितनी अलग अलग हो गई। वही शरीर है, उससे कोई आवारा आदमी है, भोग की दृष्टि से देखता है। डॉक्टर है, डॉक्टर के सामने अगर माताएं बहनें कहें कि भाई मुझे ये तकलीफ, तो वो उनको एक केस के रूप में देखते हैं कि इन बहन को ये तकलीफ है। और मुनिराज तो ज्ञेय के रूप में देखते हैं। तो इंद्रिय विषय जो कहा, स्त्री का रूप, वो रूप सबके लिए तो विषय बना नहीं, किसी के लिए विषय बना, किसी के लिए व्यसन बना, किसी के लिए ज्ञेय बना। ये क्या बता रहा है? गजब है, क्या कहें, बहुत गजब व्यवस्था है। केवली भगवान तीन लोक के समस्त रूपवान पदार्थों को, तीन लोक की सारी उचित अनुचित सब क्रियाओं के ज्ञाता दृष्टा है और रत्ती पर नहीं बनते। आप सोचो इस बात को। अपन को तो थोड़ा सा भी उल्टा पुल्टा हो जाए अपन नजर फेर लेंगे, अरे ऐसा मत दो, ऐसा मत दो, ऐसा मत दो। और वो सबको देख रहे हैं। जो भी गंदे में गंदे, गलत में गलत, बुरे में बुरे काम हुए हैं, हो रहे हैं अथवा होंगे, बोलो विचार करके देखो। वो सब देख रहे, जान रहे, और रत्ती मात्र नहीं बनते। कारण क्योंकि उनके अंदर में मोह नहीं है। तो इंद्रियों को समझना इंद्रिय बंधन का कारण नहीं है, इंद्रिय विषय भी बंधन का कारण नहीं है। उन इंद्रिय विषयों में मोह के कारण जीव की जो प्रवृत्ति होती है वो बंधन का कारण है, वो आश्रव है। इंद्रिय तो आत्मा की पहचान का चिन्ह है। कषाय क्या कहलाते हैं? जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे, बाल बोध की परिभाषा। जो आत्मा को कसता है अर्थात दुख देता है वो कषाय है। अविरत, अविरत शब्द में बहुत जोर देना चाहूंगा कि चरित्र मोहिनी कर्म के उदय से व्रत धारण नहीं करना। क्या शब्द बोल रहा हूं? चरित्र मोहनी कर्म के उदय से व्रत धारण नहीं करना। तो ये चीज में बहुत विचारनी बात, कभी खासकर मुमुक्षुओं को ये बात बहुत आरोप भी लगता है और अमुक अंशों में सत्यता भी है कि आप लोग व्रत नहीं करते, आप लोग प्रतिज्ञा नहीं लेते, आप लोग प्रतिज्ञा पूर्वक भोगों से विरक्त नहीं होते। कुछ अंश में बात सही है कि भाई हम भूल ही गए कि ये भी कोई कार्य। ऊपर से कुछ लोगों ने तो गुरुदेव की आधा पौना सुना, नींद में सुना, और फिर ऐसे कहने लगे कि गुरुदेव ने क्या कीधु छे कि व्रत लो, गुरुदेव ने क्या कीधु छे तप करो, गुरुदेव ने तो एक कीधु छे कि आ બધું જળ છે ને બાય છે ને ધૂળ છે ને આમ છે ને તેમ છે। अरे भाई, जब समय सार पढ़ रहे हो तो बात अलग है, तब त्रिकाली रूप में अपनापन करना है, इसलिए इनको बाय बोला जाता है। लेकिन जब पात्रता के रूप में आप विचार करते हो तो समझना कि अगर आप भोगों से विरक्त नहीं हो तो भोगों में प्रवर्तन करने जितना पाप ही आपको लग रहा है। प्रतिज्ञा पूर्वक अमुक वस्तुओं से विरक्त होना चाहिए। अविरत हो क्यों हो, आप नहीं होते, आप हमेशा क्यों विरत रहते हो? मन में ये फाइनल हो जाए ना, फुल एंड फाइनल की नहीं એટલે नहीं, हमेशा चला के रखना है। 60-70 साल की हो गए तो भी रात का भोजन आम तो पंडित जी दिवसे जमू छू पण कोक कोक दिवस क्यारे क्यारे એટલે क्या है? आम तो नहीं खाती पण क्यारेक, क्या है? फुल एंड फाइनल करो ना, कब तक इसको खींचते चलोगे? आपको आत्म परिणामों का बल नहीं है क्या? तो देखो, करुणानियोग हमेशा कहता है इस बात को कि दो प्रकार की हिंसा होती है, एक होती है परिणमन रूप हिंसा और एक होती है अविरमण रूप हिंसा। कौन कौन सी हिंसा? दो प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो परिणमन और एक कहलाती अविरमण। परिणमन रूप हिंसा दाखला तरीके वो रात के बहुत बेसिक नियम से अपन चर्चा करते हैं कि रात्रि भोजन वाला जैसे नियम, ये परिणमन रूप हिंसा। परिणमन रूप हिंसा यानी जब आप रात को भोजन करते हो तो जो हिंसा हो रही है वो हिंसा कहलाती है परिणमन रूप हिंसा। लेकिन जब आप रात को भोजन नहीं करते हो उसके बावजूद भी आप रात्रि भोजन का त्याग नहीं करते। क्या बोला? रात को भोजन तो नहीं कर रहे
लेकिन रात्रि भोजन का त्याग भी नहीं कर रहे, तो शास्त्रकार कहते हैं अविरमण रूप हिंसा का बंधन आपको हो रहा है। अविरमण रूप मतलब आपने साल भर में एक भी दिन आपने बाहर रात को नहीं खाया होगा, लेकिन अगर आपने उसकी प्रतिज्ञा पूर्वक उससे दूर नहीं हुए तो प्रतिदिन उसके खाने का दोष आपको आंशिक रूप से लगता है, क्योंकि आप विरक्त भी तो नहीं हुए ना। समझ में आया कि नहीं? कोर्ट में भी क्या होता है कि एक तो हस्बैंड वाइफ क्या है, साथ में रह रहे हैं, और दूसरा हो गया डाइवोर्स हो गया, दो बातें हो गई। तीसरा कहता है कि हम साथ में भी नहीं रहेंगे लेकिन डाइवोर्स भी नहीं देंगे। बोलो है क्या? समझे कि नहीं समझे? क्या एग्जांपल दे रहा हूं, थोड़ा अटपटा सा है लेकिन समझना बात को, गहरी बात कह रहा हूं कि एक दो दशा है, एक तो कह रहा है साथ में रहेगा और दूसरा कह रहा है डाइवोर्स ले लेंगे। लेकिन एक कोई पति या पत्नी दो में से ऐसा कहे कि हम साथ में भी नहीं रहेंगे लेकिन डाइवोर्स भी नहीं देंगे, मतलब क्या रहा कि वह ऐसा करने वाला व्यक्ति क्या कहीं दूसरी जगह घर बसा सकता है क्या? कानूनन तौर पे अगर आप दूसरा विवाह करने जाओगे तो पहले का डाइवोर्स होना चाहिए, तब जाके आप दूसरा कर सकते है ना। तो ये जो अपनी है ना, ये कौन सी दशा है? बहुत नियम तो लिया नहीं लेकिन करते भी नहीं, मतलब साथ तो रह नहीं रहे लेकिन डाइवोर्स भी नहीं दे रहे। तो भगवान कहते पहले डाइवोर्स सर्टिफिकेट लाओ, तब जाके मोक्ष की वधु जो है वो आपकी वरमाला डालेगी। पहली स्त्री का को छोड़े बिना दूसरी स्त्री का आप वर्ण नहीं कर सकते, कानूनन नियम। बोले हम साथ में तो नहीं रहते, साथ में नहीं रहते लेकिन सर्टिफिकेट क्या है डाइवोर्स का? समझ आए कानूनन केस? समझ आए कि नहीं आया? वही बात यहां पर है कि आप परिणमन नहीं करते लेकिन विरक्त भी तो नहीं हो ना, और विरक्त भी नहीं हो मतलब किन्हीं ना किन्हीं अंश में आप उस पर अनुरक्त हो। नियम नहीं ले रहे साहब, नियम क्यों डरते हो इतना? छोटे छोटे नियमों की आदत डालो भाई साहब। एक बहुत बड़ा नुकसान होता जा रहा है हमारे अंदर में कि हमारे जीवन में कोई नियम ही नहीं रहता, इसलिए छोटे छोटे नियम अपनी दृढ़ता रखो। बोले साहब बड़ी तकलीफ होती है, बाहर जाते हैं, अरे हाँ मालूम है भाई, लेकिन क्या संसार के कार्यों में कहीं कोई तकलीफ नहीं होती क्या? उन्हीं से तो दृढ़ता विकसित होती, उन्हीं चीजों से दृढ़ता भी। धर्म के प्रति समर्पण का भाव, धर्म के प्रति समर्पण का भाव धर्म की महिमा बताता है, और महिमा उसी चीज की होती है जो आपको प्रिय। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, लोग धर्म का बहुत बहुत मान करे लेकिन धर्म के अनुसार जिए नहीं। मतलब क्या है? माने नहीं आप, समर्पण के बिना कैसे मान है? विचार करके देखो है? ये लौकिक में भी होता है ना, किसी का जन्मदिन हो, बराबर, आप कोई खास व्यक्ति हो तो भले ही अपने को पता है सब भौतिक वस्तु है, कोई कीमत नहीं है, जड़ है, गिफ्ट विफ्ट कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कोई मुंह से तो बोले तुम्हारे लिए चांद तारे ला दूं ना, ये कर दूं ना, वो कर दो, 50 चीजें ला दूं, और 100 रुपए का वो कुछ चीज ना दे, तो ये तो बातों के बड़े, कोई मतलब नहीं। मतलब समझ आए कि समर्पण क्या बताता है? समर्पण क्या बताता है? समर्पण ये बताता है कि आपकी उसके प्रति कीमत कितनी। आप मुझसे कहें नहीं पंडित साहब आपकी हमें बहुत महिमा है, बहुत महिमा है, और हम फोन करें कि 5 मिनट आपके पास टाइम है क्या? पंडित आपकी महिमा तो बहुत है लेकिन 5 मिनट नहीं है अभी मेरे पास, कट गई ना। विचार करके देखो, ये स्वाभाविक सी बात है कि महिमा के साथ समर्पण होता है, और समर्पण जिस भी वस्तु के प्रति आता है अपने आप ही क्या हो जाता है, उसके प्रति समय भी निकल आता है, उसके प्रति आप संसाधन भी खर्च कर देते हो। देखो बहुत प्रैक्टिकली सब बातें हैं, पर भले ही आप अपनी आजीविका के कारण, इस सब के कारण घर परिवार वालों के साथ मिल नहीं पाते हो, बात नहीं कर पाते हो, ज्यादा देर बैठ नहीं पाते हो, बराबर, लेकिन आपको उसकी महिमा है कि नहीं है? और महिमा है, और आपके इनकेस आपके घर में कोई बीमार हुआ तो जिस व्यापार आजीविका के कारण आप उनसे मिल नहीं पाते थे,
अगर कोई उसके घर में कोई ऐसी बीमारी हो, सब बंद करके उसके साथ में रहोगे कि नहीं रहोगे? बोलो क्यों? ना रहे तो निंदित हो। कल ऐसे एक व्यापारी मुझे मिले, उनके घर में किसी को कोरोना आया तो बोले कि पंडित जी हम तो चिंतित हो गए थे। मैंने क्यों? बोले कि इनको आ गया, उनको आ गया, हमको एक दो को और आ जाता तो सब काम धंधा ठप हो जाता। तो मैंने एक ही बात बोली, धन्य है मैं व्यापारी नहीं हूं। बोला बोले ये क्या बोला? मैं तो आपको अपनी व्यथा सुना रहा हूं, आप कह रहे व्यापारी नहीं। मैंने कहा देखो ऐसी परिस्थिति में भी आपको आत्मा की नहीं पड़ी, आत्मा का नजदीक शरीर की नहीं पड़ी, शरीर के नजदीक वाले परिजनों की नहीं पड़ी, किसकी पड़ी? काम धंधे की पड़ी। अब ऐसा व्यापारी मरकर दुकान के आगे कुत्ता नहीं बनेगा, बिल्ली नहीं बने, गड़ोड़ छिपकली नहीं बने तो कौन सा आश्चर्य है? तुम्हारा राग इतना जुड़ जाए किसी चीज के साथ में कि चेतन का नुकसान ख्याल में ना आए, शरीर का तन का नुकसान भी ख्याल में नहीं आए, परिजनों का नुकसान भी ख्याल में नहीं आए, मात्र धन का नुकसान ख्याल में आए, ऐसे व्यापारियों का क्या होगा? तुम्हें इस बात की नहीं पड़ी कि कोरोना होगा तो मेरा धर्म ध्यान छूट जाएगा, कोरोना होगा तो मेरे परिवार में गड़बड़ी अव्यवस्था हो जाएगी, कोरोना होगा तो मेरा क्या कहते हैं जो जिस शरीर के अनुकूलता में धर्म ध्यान सहजता के साथ में होता उसकी प्रतिकूलता हो जाएगी। उसकी नहीं पड़ी, किसकी पड़ी है? धन की पड़ी है। सबसे बड़ा निर्धन व्यक्ति। समझ में आया कि नहीं आया? ये है समर्पण, बड़ी गजब वस्तु है। समर्पण जिसके प्रति आपका होता है उसके लिए समय भी निकल आता है, उसके लिए शक्ति भी निकल आती है, साधन भी आप लगा देते हो और वो आपके जीवन में आते ही आते। तो बस यही बात है, संयम और कुछ नहीं है, धर्म के प्रति समर्पण का प्रतीक। क्या बोला? धर्म के प्रति। जैसे कोई बहन क्या कहते हैं पसंद आ गई, बच्ची पसंद आ गई तो ये सगुन वगुन में लगुन वगुन में जो होती शुरुआती उनमें सोने चांदी की वस्तुएं क्यों देते हैं? बोलो, ये सब लोगों ने किया होगा ना। पहली बार कोई अपने घर में कोई बहन बच्ची पसंद आई तो पहली बार में जो कोई फंक्शन करते हैं बोले कोई सोने का आभूषण देते हैं। क्यों देते हैं? शगुन होता है, शगुन नहीं है, ये समर्पण का प्रतीक कि हम पक्का सीरियसली इसे अपने घर की लक्ष्मी मान रहे हैं, इसके लिए उसके प्रतीक के तौर पर हम ये 1 लाख रुपए का आभूषण दे रहे हो। अंदाजन बोला क्योंकि ये इसके बिना कैसे किसको विश्वास बैठे कि हम आपकी कन्या इसको सौंप सकते। बोले साहब आपकी कन्या हमें बहुत पसंद है लेकिन हम देंगे कुछ नहीं। बोले कैसे मान लें भैया? फिर तो समर्पण, ये संयम क्या है? धर्म का समर्पण। अगर आपके जीवन में व्रत आदि हैं मतलब आप क्या हो? धर्म के प्रति समर्पित हो। और अगर व्रत आदि नहीं है तो आप धर्म के प्रति समर्पित नहीं हो, तो अव्रत है, कर्म मान लो। और 25 प्रकार की क्रियाएं, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। बराबर समझना है? तो ऐसे ये जो चीजें हैं ये सांप्रदायिक आश्रव के भेद बताया। देखो यहाँ पर ही बताया 5 प्रकार की इंद्रिया